चलें जी, तो हम लोगों ने लिया है रोबोट वैक्यूम कि हमें इसकी बहुत ज़रूरत थी। अभी हम जो है इसको अनबॉक्स करते हैं। चलें, खुलने लगा है। वारंटी कार्ड, हमारे ये वही जर्मन हमने जो केबल है, ये सॉल्यूशन, बहुत mopping pads, there are 2 of them, and a ये सिर्फ है उसका। this is the landing stuff. शाकार ब्लैक अच्छा लग रहा है। हाँ, इस तरह का ब्लैक नहीं है। अनबॉक्स जबरदस्त। अच्छा, the water stains inside the robot are left from the factory test. Please rest assured is unused. अच्छा, this is the cleaning water tank within the car. This is the dirty water tank. Install the ramp extension fluid before use, which is here. This is the ramp installation. We have done it already. और ये easy to install थी, like this. This is the उन्होंने एक्स्ट्रा दिया। this is the dust bag. This is the dust bag where it will store, and this is the place for liquid. This is the detergent, multi-surface floor cleaner for auto detergent compartment. साफ कर दो थोड़ा सा। Okay, so this has to be removed. कैमरा हाँ, ये जो डैम्पर्स के हैं ये वाले, this has to be. So this is the this is the place where the dust will go. You can wash it after some time under tap water, and when it will fill, it will go through this hole towards the dust bag in the machine.
Go on top of the stairs or anything higher surface. This is the cleaning brush. These are the two roll brushes. आप कहते हैं इसके अंदर चला जाएगा ये तो चिड़ियों के लिए बना हुआ है. This is the lidar navigation. There are the three buttons: home, power, and I don't know what is it. So we will install the app. It's called Dreamy Home. You can install it from App Store. और इसको इंस्टॉल करने के बाद हम अपने रोबोट को इससे कनेक्ट करेंगे. We need to have a login, which I will make now. So now we can add the device by scanning the QR code. Turn on the device. हाँ. You hear a prompt on the button indicator lights. ये इसको बताओ उनको Welcome to use Dream Robot. Please open Robot's cover and scan QR code. Robot and phone connected. Please return to app to wait for the result. Network connected successfully. Place robot back into dock before starting tasks. ऐप इंस्टॉलेशन के बाद कुछ अपडेट्स हैं वो आपको अपडेट्स करनी पड़ेंगी बिफोर स्टार्टिंग द टास्क. और ये सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलेगा मैपिंग करने का. तो आप अपने रूम घर की जो भी चीज़ें हैं जो इधर गिरी हुई छोटी मोटी वो हटा लें और उसके बाद रोबोट को आप स्टार्ट मैपिंग का टास्क स्टार्ट कर दें. सही है. पिक्चर्स ही ले रहे हैं फिलहाल. ओपन एरिया देख रहे हैं आगे आएगा. So initially the robot was actually mapping the whole apartment. So it was just going around taking pictures, analyzing which area is free, where it can go. So it was also actually colliding with certain objects, but it only happened during the mapping. After that, when we were actually giving it the task to clean and everything, it was very careful. But I think during mapping they intentionally go near spaces and places to explore if there is further space to go or not. पहले करना चाहिए सारे इसमें जा रहे. So the mapping process can take up to, let's say, 7 to 10 minutes. So we have to be at that time. For the setting, go to the device. Then these three dots. More functions में क्या है? Off peak charging. The robot will charge with the minimum required power during peak hours. And we charge to full power during off peak hours. Yeah, why not? Peak hours क्या है? रात के 10 बजे से सुबह 8 बजे तक. इस टाइम वो चार्जिंग करेगा. Resume cleaning mode का मतलब क्या है कि during cleaning the robot will automatically return to the charge when the power is low. Until the power is sufficient, the robot will continue cleaning. Power saving cleaning. अगर power saving वाली cleaning करनी है. Child lock है. Notification. Why is an obstacle avoidance हमने कर लिया था ना. Pet care off है. Pictures हमने आने के देने हैं. Fill light ठीक है. Intelligent obstacle avoidance. फिर AI driven mop extend setting सब on है. Frequency high frequency. This is the mapping of our house. So for example, if you go here, this was the bathroom. But if you want to rename some map area, तो आप क्या कर सकते हो कि रूम पार्टीशनिंग कर सकते हैं. रीनेम कर सकते हैं. Map 1 cancel. फ्लोर मटेरियल यू कैन चूज़. किचन के अंदर फॉर एग्जांपल फ्लोर मटेरियल कैंसिल. क्योंकि सिर्फ टाइल्स की वो पे अगर आपकी टाइल्स लगी हैं तो उसकी ओरिएंटेशन आप सेट कर लें. मैप डिस्प्ले 3D मैप भी है. बिलाल 3D मैप खुल गया. क्लीन जीनियस वैक एंड मॉप. बस ये क्लीन स्टार्ट. Start cleaning. सब तो छोड़ गया इस कमरे में जाएगा.
तो ये है जो डस्ट निकली है। अब देखना ये कि हर दफा निकलेगी या दफा ही है। चलो ये भी तो देखना वो लिक्विड खत्म ना हो गया जिसके अंदर है। मंगवा लेते हैं, लेकिन इसके अंदर पानी खंगाल तो जरा टेस्टिंग करनी है हमने। तो थोड़ी सी हम केचप यहाँ पे बस काफ़ी है इतनी, ठीक है। फिर हम थोड़ी सी कुकी क्रश करके और थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं, ठीक है। और पानी ठीक है बना लिया है। अब मैं ड्रीमी को बुलाती हूँ, इस सेक्शन की सफाई कराते हैं पहले उससे। Cleaning mop pads. इसको जोन यहाँ से शुरू हो रहा है ना, तो थोड़ा सा इधर से करके शुरू आ रहा है। इसमें पानी लगाएंगे और हमारा जी। और वो इधर खलारा डाल दिया जिसने। ओके जनाब, हम लोगों को ड्रीमी लिए हुए अब कितना अर्सा हो गया? 2 हफ्ते से 3 हफ्ते हो चुके हैं। और हमारा एक्सपीरियंस सोफा कैसा रहा, लेट्स शेयर इट विद यू ऑल। एक तो मैं कहना चाहती हूँ कि ड्रीमी के जो फंक्शंस हमें भी वीडियो में क्लियर ना हुआ, अगर हुआ हो तो ड्रीमी के अंदर बेसिकली क्लीन जीनियस का फंक्शन है, जिसमें वो क्या करता है कि वो डिटेक्ट करता है एक दफ़ा क्लीनिंग कर लिया आपने किसी जोन की या सारे रूम्स का सीक्वेंस देकर आपने सारे घर की सफाई करा ली है, तो उसके बाद वो डिटेक्ट करता है अगर पानी गंदा है तो वो दोबारा से सफाई के लिए चला जाता है। तो डबल क्लीनिंग कर देता है। क्लीन जीनियस में पहले वो कहता है कि पूरी बाउंड्री जो है ना आपकी, जो भी जिस भी रूम में गया है उसको सारा पहले बाउंड्री को क्लीन करता है, और एक ही टाइम पे वैक्यूम और मॉपिंग इकट्ठी होती है इसकी। वो क्लीन करने के बाद फिर मिडल एरिया जो है ना उसको फिर वो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइंस में जा के वो सारे। अगर थोड़ा घर बड़ा है ना तो इट मींस का आपका 2 दिन तो लग जाएंगे इसको। अगर बहुत बड़ा घर है तो आई मीन हम जो इसमें घर में रह रहे हैं, दिस इज अराउंड 80-90 स्क्वायर मीटर के अराउंड ये घर है, और इसमें ये है कि मैक्सिमम घंटा 1.5 लग जाता होगा, आई वुड से, इससे ज्यादा लग जाता है यार। एक दफा वो पूरी सफाई कर लेता है वो विद इन 1 आवर। डीप क्लीन वाला करना। हाँ, लेकिन वो डीप क्लीन तो ज्यादा टाइम लेती है ना, मोर देन 2 आवर चले जाते हैं। लेकिन ये है कि अच्छे फर्श साफ होते हैं, चमकते हैं फर्श बाद में, और वाकई ही कोई गंद वगैरह नजर नहीं आता। कोनों शोनों से भी हर चीज वो साफ कर देता है। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए वैलिड नहीं है। पाकिस्तान वाले घरों में डेफिनेटली वो तो बहुत मुश्किल है ना, वहाँ तो फिर ज़्यादा जैसे एक तो वहाँ डस्ट और मिट्टी बहुत ज्यादा है, फिर आपको बहुत ज्यादा चलाना पड़ेगा। ये आगे वो चीजें उठा के नहीं रखता, चीजें तो खुद ही उठानी। पाकिस्तान में तो पहले दिन हम थोड़ा अनॉय हो रहे थे कि यार अब ये इधर मूव करो, ये इधर मूव, चीजें ऐसा नहीं कि घर का फर्नीचर मूव नहीं कर रहे थे, बट जैसे हमारा पेडेस्टल फैन पड़ा है या मेरी एक्सरसाइज मशीन पड़ी है, तो मुझे है कि कॉर्नर सही साफ नहीं होंगे तो मैं इसको थोड़ा आगे पीछे कर लेती हूँ। या फिर कोई स्टूल पड़ा है तो मुझे है कि इसके नीचे भी सही तरह हो जाए, इसके नीचे खुद से रोबोट नहीं घुस सकता क्योंकि उसकी हाइट और विड्थ फिक्स है, तो हाँ वो फिर नहीं सही साफ करेगा। हमारे बेड के नीचे चला जाता है हमारा ड्रीमी, लेकिन हमारे काउच के नीचे नहीं। लेकिन जो नया मॉडल है वो उसका जो ऊपर है वो नीचे अपग्रेड मॉडल में लेडार जो है वो नीचे स्क्वीज जाता है, तो फिर वो आप सोफे के नीचे, फिर उसकी हाइट कम हो जाती है ओवरऑल रोबोट वैक्यूम की। तो खैर ओवरऑल आई वुड से एक्सपीरियंस यहाँ के घरों के लिए, यूरोपियन घरों के लिए, या जो ऐसे घर जहाँ पर बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा, बहुत ज़्यादा डस्ट नहीं पड़ती, उनके लिए बेहतरीन है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंसिव डेली सफाइयों की ज़रूरत पड़ती है, बड़े हाउस होल्ड्स में बहुत ज़्यादा गंद है, बच्चे वगैरह, तो फिर वहाँ पे ज़रा ये चीज़ें ईजी नहीं है, ठीक है, वहाँ पे नहीं काम करेंगे। हाँ, लेकिन अगर अपने पेट्स रखे हुए हैं तो आपके लिए बेहतरीन है ये। हमारा भी मेन यही था कि एक तो यहाँ पर डस्ट एक अजीब सी कपड़ों से गिरती है, बुर टाइप की ना, कॉटन टाइप की, वो बहुत ज्यादा यहाँ पड़ती है जर्मनी में। फिर उसके अलावा बाल गिरते हैं, बाल बहुत गिरते हैं।
तो इस वजह से हमारे लिए ज़रूरी था कि चलो अगर डेली बेसिस पे भी करना पड़े या 1-2 दिन बाद भी एक दफ़ा वैक्यूमिंग करनी पड़े तो ईजी हो जाती है। और मॉपिंग की सहूलत तो है ही है ना, मॉप धोना पड़ता है ना मॉप सुखाना पड़ता है, मतलब ये जो सहूलत है ना इससे अच्छा। और आपने देखा हमने जो पानी निकाला फर्स्ट टाइम क्लीनिंग के बाद, और उस टाइम पे हमारे मॉप किए भी शायद हफ्ते से ऊपर हो चुका था, हमने घर में मॉपिंग नहीं की थी, तो वो उस टाइम जो फर्स्ट क्लीनिंग थी हमारी बहुत ही डर्टी पानी निकला था। उसके बाद आई थिंक इतना डर्टी नहीं निकला, वो निकाल ही देता है वैसे ये है। हालांकि उसके बाद हम यूज करते ही रहे हैं लेकिन उतना गंदा नहीं निकला, लेकिन फिर भी गंदा निकाल लेता है कहीं ना कहीं से, ये पता नहीं क्या। हाँ ये हाँ, लेकिन ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, तो वी रिकमेंड दिस वेरी मच। आप लेना चाहते हो तो ज़रूर परचेज करें, बहुत अच्छी डिवाइस है। और बिलाल आपकी भी सेम रिकमेंडेशन है या नहीं? नहीं। क्यों? पाकिस्तान के लिए तो बेहतर नहीं है, यहाँ के पाकिस्तान के लिए छोटे घर के लिए ठीक है। हाँ तो हम ये पहले कह चुके हैं छोटे, हाँ ठीक है मेरी भी। ओके जनाब, सो दैट वाज इट फॉर दिस व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।